जिसको बोलना होगा तो अपना अपना Very warm wishes to all. I, Dr. Sarita Dalal, with Dr. Chandrasekhar Yadav sir, Assistant Professor, IIMT College of Science and Technology, B.Ed Department, welcome you all this live Alumni Connect. I extend my warm welcome to the Managing Committee, birthing faculty, and other dear students with alumni, and each one of you who has connected with us. Today, we are going to connect with our B.Ed alumni. Among us, we have Mr. Manoj Kumar, PGT Science in Mukandi Devi Public School, Greater Noida. His qualification is BSc, MSc in Chemistry, and B.Ed. Ms. Jyoti Singh is BSc, MSc in Physics, and B.Ed. She is working in Ascent International School as PGT Physics. Ms. Neha Pathak, PRT in JP International School, Greater Noida. Before moving forward with the program, let me brief you about the vision and work culture of IIMT. IIMT Group of Colleges established in the year 1994. Since its inception, IIMT as a group has grown by leaps and bounds and achieved exemplary recognition from the industry and academia. At IIMT, we are committed to providing a value driven culture and creating a professional environment. As a large and diversified group, IIMT imparts knowledge in engineering, management, education, law, pharmacy, and so on. It has highly qualified and experienced faculty members in their respective functional areas. IIMT boasts of having more than 8,000 students in various courses in 6 colleges. The educational group has been dedicated to providing quality professional education through well accredited courses, seminars, conferences, guest lectures, industrial visits, and excellent academic facilities. Now, I'm going to brief you all about B.Ed Department, IIMT College of Science and Technology, Greater Noida. It came into existence after receiving recognition from NCTE for offering teacher education course to a unit of 100 B.Ed students during the academic session 2006 to 7. The college is situated at plot number 20, Knowledge Park 3, Greater Noida. It is recognized by NCTE and affiliated to CCS University Meerut. It is a self-financed college managed by 7 Rotarians, all of whom are devoted to the service of humanity of the society. The college is established with a view to mold and shapes the prospective teachers to be competent to transact the curricular experiences to the students of secondary schools and to produce quality teachers with great values so that they could contribute in tasks of nation building. This objective is being achieved by the college with the help of highly qualified teaching faculties. It is academically generated by CCS University, Meerut. The college has a rich library with the latest reading, research, and reference materials. Besides enriching the knowledge of teachers and students, the college has a psychological laboratory, an education technology laboratory, language laboratory, physical science laboratory, mathematics laboratory, chemistry and biology laboratory, art and craft laboratory, sports room, music room, seminar hall, conference hall, multi-purpose hall, and open space for different purposes. Let's start us the program with the interaction of our dear alumni. I would like to say Mr. Manoj
to introduce himself. Mr. Manoj, it's over to you. मनोज ऑडिबल? आवाज आ रही है मनोज? अच्छा, ज्योति को मैं इनवाइट कर लूँ, कोई नहीं। It's over to you, Jyoti. Okay, I am audible. Yes, हाँ, you ये are audible. ऑडिबल ज्योति। Okay, a very warm good afternoon. So I am here. My name is Jyoti Singh, and I am a alumni of IMT College of B.Ed session 2017-2019. Okay, so here is a topic of our today's today's team. That team is of 4 or 5 members. Okay, so the topic is classroom management technique. So in our B.Ed, we learn so many skills, that the set of 7 skills, introduction skills, and number of different skills. So from that, it is a crisp of that skills. That is a classroom management techniques. There are basically 4 C's are there. तो फर्स्ट सी हमारा हो जाता है क्रिटिकल थिंकिंग. So first C is critical thinking, second C is communication, third C is collaboration, and fourth C is creativity. अगर हम इन चारों C's पे वर्क करें तो ये जो हमारा टॉपिक है क्लासरूम मैनेजमेंट टेक्निक्स, ये ऑल 4 C's में कवर हो जाता है. लाइक फर्स्ट इज आवर क्रिटिकल थिंकिंग. सो बेसिकली क्रिटिकल थिंकिंग को हमें डेवलप कराना है इन स्टूडेंट्स ऑल्सो. हमें खुद में तो डेवलप करना ही है, बट स्टूडेंट्स में भी डेवलप कराना है. सो दिस इट इज द एबिलिटी टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन एंड एनालाइज देम एंड गिव द प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स टू द स्टूडेंट. So it is very important. Cramming and all these methods, rote learning methods, are old now. So we need to develop some more skills so that we can teach every student with their caliber. For example, if I'm teaching, let's say, topic motion, then what I will do? I will do first introductory set of questions so that I will check their previous knowledge, what they know about motion, what type of motion are there, 2D motion, 3D motion. So I will first collaborate the students. By asking the question, I will collaborate the students, and this technique is work in our classroom management technique. Okay. So second is communication. So communication is a very important thing. If अगर हम ही बोलते रहेंगे अपने टॉपिक को लेके तो हो सकता है बच्चा थोड़ी देर के बाद फोकस खो दे. So what will we need to do? We need to give some previous questions to students. Let them do that. Okay. Make a small groups, activities, so that you can collaborate the students. Next is creativity. Creativity is very important thing. Creativity, you also need to make more creative lessons, lesson plan, and student also need to make a creative behavior in a class. Like let's make them understand through the 2 type of learning, inductive learning and deductive learning. We know that. एक तो एग्जाम्पल दे दिया आपने पहले, उसके बाद किसी कंसेप्ट को समझाया. एक आपने पहले कंसेप्ट समझा दिया, उसके बाद आपने उसके एग्जाम्पल से दिए. बट इससे भी अलग हमें कुछ और मेथड्स यूज करने पड़ेंगे. कैसे मेथड? क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम कैसा इंक्लूसिव है. ऑल काइंड ऑफ IQs आर देयर. ओके. तो कोई 60% वाला भी है, कोई 90% वाला भी है. सो इस इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम में हमें क्या करना पड़ेगा? वी नीड टू ब्रिंग सम एक्टिविटीज to make them proper understand and make a connection with the student. So like for example, if I'm teaching concave mirror, okay, mirror, lenses, these kind of topics, then what will I do? I will make an activity of mirror and lenses. What are difference between them? What are types of them? Okay, so they are
take interest in your topic, and your class will become more effective. And these four C's are very important to build a classroom management mainly. Any questions? So, Jyoti, what is your approach to involving parents in your classroom management techniques? Yes, the involvement of parents is very important. So basically, we need to make an anecdotal register in a class. Let's say your class is of 30 students, and you make one register anecdotal. In that register, you maintain all the students' name and all these details. After that, what will you do? At the end of the week, you need to write the progress of the child, about that good performance, bad performance, everything you need to conclude in that. After that, you need to take call for other parents. You can talk them personally, or you can talk in a PTM face to face. So this is the best method that parents could also in take their all responsibilities of the student of what they are doing in class, or we can communicate with parents. So this is the best method, because we can not do things for 30 students now. So that register will maintain, and we can talk to them. So now I would like to say Miss Neha Pathak to introduce herself. Miss Neha Pathak, it's over to you. So, good afternoon, one and all, to our respected Good teachers who gave me this opportunity to be here today, and to all the listeners who are present here, to the ones who are with me here, to Jyoti ma'am and also Manoj sir. So, as we have discussed already, as Jyoti ma'am has discussed already, that our topic is basically effective classroom management. So, educators usually have their hand full on back-to-back classes. Like, no teacher knows what is the meaning of free time, as they are always busy. So to give the effective lessons to their students, what they have to do is basically they have to plan each and every lessons. But the main point is, this point is always missing from the part of teaching, as it is never included as a part of teaching. Everyone ignored this topic because people thought that the work of teacher is just to enter in a class, just to deliver the lesson and go back to the classes. But there are before and after activities the teacher has to follow, and it is very important to follow those activities, as so that they could deliver an effective to maintain their effective classroom, to manage their classroom effectively. And so before starting with the topic and discussing what are the effective things, what are the uh, pros and cons of this, let's discuss. Management includes a wide range of skills and strategies that educators use. Basically, as a teacher, we use many strategies. कुछ बच्चे हमारी क्लास में मे बी दे आर प्रॉब्लमैटिक चाइल्ड, जिसकी वजह से होल क्लासरूम विल गेट डिस्टर्ब. Some maybe are you know very good learners, some maybe there must be problematic child. In any case, maybe a child is a special, so a teacher has to behave accordingly, have to plan lesson accordingly, so that जो भी उनके lesson है वो properly deliver and the lesson against. So before discussing, let's go to why it is important for delivering an effective classroom. So classroom management skill is basically indissoluble indissoluble part of a teacher's in all level, whether a teacher is a pre-primary teacher or a teacher is a professor at a classroom. As I have also seen my teachers teaching in a classroom, while teaching us, they used to prepare themselves well कि आज हमें क्या क्या टॉपिक कवर करना है और आज हमें कितना पार्ट तक कवर करना है. If you are not as a teacher, if you are not prepared to that part, you will never going to deliver your lesson effectively. क्योंकि एक स्टूडेंट अगर एज अ टीचर आपको ही क्लियर नहीं है what you have to taught, how you expect it from your student कि
वो कैसे समझें। सो एज अ टीचर आपको ये चीजें, ये रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है। एंड अगर आपको क्लासरूम, एक अफेक्टिव क्लासरूम मैनेज करनी है, so it is not only important for teachers, it is also important for students. As अगर एक student and teacher में positive relationship है, if a teacher and student have a positive relation, you will definitely feel कि उस student को उस subject से प्यार हो जाता है, you know, कि एज ए लाइक मैं अपना अगर एग्जांपल दूं तो आई एम इनटू टीचिंग बिकॉज मैंने अपने टीचर्स को देखा था उस तरीके से पढ़ाते हुए, उस तरीके से चीजें समझाते हुए, जिस वजह से माय माइंड वाज वेरी क्लियर फ्रॉम वेरी यंग एज। आई कैन से दैट आई हैव टू बी अ टीचर, एंड इन बीएड आल्सो आई हैव सीन माय टीचर्स हाउ टू डिस्कस थिंग इन द क्लास। सो इस वजह से माय थिंग्स वर वेरी क्लियर फ्रॉम वेरी यंग एज। सो माय सब्जेक्ट्स वर क्लियर दैट आई हैड टू चूज दिस सब्जेक्ट, दिस इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। अगर एक टीचर और स्टूडेंट के बीच का रिलेशनशिप पॉजिटिव है, so you will definitely see a positive growth of that student in that special subject. So as a teacher you have to work on it that आप कितना positive relation अपने student के साथ maintain करते हो। In kindergarten also you can see, like I myself is a pre-primary teacher, so I have to maintain a very warm, very motherly environment nearby my kids so that वो स्कूल आने में आनाकानी ना करें। आजकल बच्चों को एक मदरली, बिकॉज फ्रॉम सिंस दे आर वेरी यंग, फ्रॉम वेरी यंग एज दे आर बीइंग सेंट टू द स्कूल। So if I focus on only academics, so they will never take interest in that. But I have to create that environment. I have to prepare myself from the activities so that I could make them learn also, and they will feel safe also. They will feel secure also. That yes, school is not only about pado academics and all. School is also about activity and fun thing. And yes, I love our teacher. ये चीज एक बच्चे के अंदर लाना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ अ टीचर, जो कि टीचर ही कर सकता है। एंड स्टूडेंट ऑल्सो अप्रिशिएट दोज टीचर्स हु ट्राई टू मेक good bond with them. As and also you can see that teachers who masters their skills in effective classroom teaching, they never take any stress, anxiety, or they are never feared of anything. Like if I take example of my teachers also, like I have taught by CS Yadav sir, so I know ki how stressful he always remains in the class. Sorry, without stress he always remains in the class. वो बहुत stress free आते थे, and he always delivers things like वो उनके tip of the tongue में होता था, because he has mastered the thing. उन्होंने इतना ज्यादा एक्सपर्टीज हासिल कर ली है अपनी चीजों में कि ही नोज कि हाउ टू डिलीवर हिज लेसन इफेक्टिवली, और वो बच्चों को उस तरीके से अच्छे से समझ आ जाए। सो ये टीचर की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एज अ न्यू कमर टू दिस टीचिंग। आई कैन से अभी हम लोग काफी स्ट्रेस लेते हैं क्योंकि वी आर लर्निंग न्यू थिंग्स, वी आर एट आवर लर्निंग फेज, एंड आई एम लर्निंग मेनी थिंग्स फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन आई एम वर्किंग एट, फ्रॉम द टीचर्स हु आर वर्किंग विथ मी। So let's talk about the factors that affect the classroom management. There are many factors जिसकी वजह से classroom management effective नहीं हो पाता है. That most important of it is the classroom environment. For example, if I'll give an example, there is a summer season. बहुत ज़्यादा गर्मी है. Students are sweating, but at the same time you went to the class and start teaching them ये topic है, you have to cover this. Do you really think कि student को वो topic समझ आएगा? It's not so, because their mind is busy with some other things. They are sweating, they are feeling very hot. So how you will expect this, that without a proper environment of the class? It's not only about physical environment, it also about the discipline also. So you have to maintain a proper environment in the class, whether it's a physical environment, whether it's about discipline or sitting arrangements or infrastructure wise. You have to maintain a proper class. Class should be clean, well maintained, so that student must focus on the topic only. If I'm teaching, for example, if I take example of my pre-primary kids, if I am teaching letters to the students, I will definitely try to make some flashcards of that letter so that they could focus on that letter only. मैं स्मार्ट बोर्ड में उस लेटर से रिलेटेड आई विल प्ले द वीडियोस और आई विल शो देम सम posters regarding that letter so that their focus should be there. Yes, today we are doing this is the topic, so that उनका ध्यान कहीं पे भी diverted ना हो. This is must. Also classroom
as we already discussed, teacher and student relationship, it is very, very important how teacher is behaving with the student, also how the student is behaving with the teacher. वो तभी proper हो पाएगा. Student will definitely going to respect you if you will respect them. If student finds that yes, our teacher is helping us, yes, the teacher is, we can discuss anything with our teacher. So student will definitely respect you in all aspects, rather than it's not only like academically, but in all aspects. And also a teacher should understand the characteristics of the students. If you are new into teaching, take few times other than academics, take few time with your student so that you could understand them personally. It is very important. When I was new in my school, I took around 1 to 2 weeks to understand each of them, that how is their behavior, because they are very little kids. My kids are 3 to 4 year only. So I have to understand their behavior. कि उनका behavior क्या है? Why he or she is not focusing? Is he or she is comfortable with me, or there is some other problem? So I I observe each and every one of them properly, and now I got what is the characteristic of this student. I can tell you about each and every student in detail. If you will tell me to write a story on a student, I can write so also. So this should be observation of a teacher, so that आपका जो भी आप lesson plan करो वो उस accordingly करो. As we have been also told that there is an individual difference among all the students, so you can't expect that कि मैं एक way से पढ़ा दूं and उसी वे से सारे स्टूडेंट्स को समझ आ जाए. दिस इज नॉट एट ऑल पॉसिबल बिकॉज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस. यू हैव टू मोल्ड योर स्ट्रेटेजीज. आपकी स्ट्रेटेजीज कभी भी स्टिफ नहीं होनी चाहिए. अगर आप एक स्टिफ प्लानिंग के हिसाब से जाते हो कि नहीं, आई विल डू दिस ओनली, दिस वुड बी माई प्लानिंग, मैं ऐसा ही करूंगी, इसके अलावा आई विल नॉट डू दैट, तो दिस वुड नेवर हैपन. लाइक इट इज नॉट पॉसिबल कि फिर आप एक्सपेक्ट करोगे सारे स्टूडेंट्स को थिंग्स वुड बी क्लियर. आपको अकॉर्डिंग टू द क्लास, अकॉर्डिंग टू द क्लासरूम बिहेवियर, उस दिन मे बी समथिंग हैपन. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव प्लान्ड अ लेसन, मे बी समथिंग एल्स इज हैपेंड, ऑलरेडी हैपेंड इन द क्लास. तो आपको माइंड में ये क्लियर होना चाहिए कि आपको आज उस लेसन को वहां पे स्टॉप करके उस थिंग को सॉल्व करना है, एंड आपको किस तरीके से अब उस लेसन को प्लान करना है कि वो आपका चैप्टर प्रॉपरली डिलीवर भी हो जाए, बट यू आपकी जो प्रॉब्लम ऑलरेडी है दैट शुड बी सॉल्व. So other than this, basically behavior management, आपको student का behavior manage तो करना ही है. As a teacher, it's very crucial role of a teacher to manage the behavior. आपको सबसे पहले and the must thing is observation, as I have also told. आपको अपने teaching style एक बार बच्चों को observe करके, teaching style should be consistent. Also, the sessions that you are taking in the class should be interactive. It is very important. The thing should not happen like that कि आप बस क्लास में जा रहे हैं and you are delivering your chapter as a lesson. Only you went to the class, you just lecturate each and everything कि this would never happen. As you know कि student must feel sleepy. Student will think कि teacher का तो obviously ध्यान ही नहीं है, तो they can do anything at the back. But if you make classroom interactive, आप उनको भी इंक्लूड कीजिए. आस्क क्वेश्चंस टू देम. विद दिस क्या होगा, बच्चे एक्टिव होंगे. द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक द क्लासरूम इफेक्टिव. एंड क्लासरूम मैनेजमेंट हमें करने के लिए एक बहुत जरूरी है कि हम बच्चों के साथ इंटरेक्टिव सेशंस रखें. एंड ऑल्सो देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स जो कभी बोलते ही नहीं है. यू मे हैव सीन दे नो थिंग्स बट दे आर नॉट दैट कॉन्फिडेंट टू स्पीक अप basically. So for that, you can also involve peer teaching in your class. Like you can tell two of the students, you can come at the front and teach your friends only. So these are the strategies which we can follow. Other than this, I know that pupil teachers are also must be watching these things today, our session today. So I will definitely tell them that expertise is very important and practice makes a man perfect. You have to make it your habit कि आपको अभी से the part you are, if you are doing micro teaching or you are doing internships at the schools, don't take it as a part of your curriculum. आप ये मत सोचिए कि ये तो बस 4 महीने की इंटर्नशिप है, हमें तो बस कैसे भी खत्म करनी है. टेक इट एज एडवांटेज. उसको एडवांटेज की तरह लो और उसको सीखो. मे बी ये चीज आपके लाइफ में आपके लिए बहुत बड़ा लेसन बने और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है. बिकॉज एक theoretical lesson and doing that thing practically, there is a lot of difference in doing things practically and theory of these things.
because हमने भी वो चीज एज अ थ्योरी ली है एंड टुडे वी आर डूइंग दैट थिंग प्रैक्टिकली, सो वी नो द डिफरेंस एंड वी नो कि हम उस टाइम पे कहाँ पे थे और आज हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू बी एन इफेक्टिव टीचर, अ गुड टीचर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी हैबिट में इस चीज को डालो. डोंट, अपने डेली के लेसन प्लान आप जैसे बना रहे हो, डोंट मेक, आप ये मत सोचिए कि आपको बस सिर्फ सर से, टीचर से अपने चेक कराने के लेसन प्लान बनाने हैं. उनको बनाओ बट एज इट इज उस लेसन प्लान को फॉलो करो क्लास में. यू विल डेफिनेटली फाइंड, यू विल फील गुड इनसाइड कि यस, आज मैंने क्लास में जाके कुछ ऐसा किया है, एज अ टीचर कुछ ऐसा किया कि मैं अपने आप पे पॉजिटिव फील कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ. तो एज ऑलरेडी told by Jyoti ma'am that there are 4 C's, but I will also introduce with you with 3 another C's. That is basically our compassion, connection, and consistency. As a teacher, you have to be consistent. As a teacher, you have to be compassionate towards your job. आपको स्कूल सिर्फ अपनी जॉब ये देखने नहीं जाना है कि मुझे तो जाना है, मेरी तो जॉब का पार्ट है, इफ आई टेक लीव तो मेरी सैलरी डिडक्ट हो जाएगी. नो, एज अ टीचर आप किसी का भविष्य बना रहे हैं. यू आर द बैकबोन ऑफ दो स्टूडेंट्स फ्यूचर. सो आपको एक कंपैशनेट टीचर की तरह स्कूल में जाना है. जो भी प्रॉब्लम्स है, मेक ऑल द प्रॉब्लम साइड लाइन, बट उस पार्ट के लिए, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, व्हेन यू आर डिलीवरिंग द लेसन, आपको स्टूडेंट का फ्यूचर सोचना है. आपको एक गुड टीचर की तरह परफॉर्म करना है. एंड ऑल्सो द थर्ड सी इज कनेक्शन. यू हैव टू बिल्ड अ गुड कनेक्शन विद द स्टूडेंट टू deliver the classroom effectively. So I hope the things are clear from my side, and thank you for all to listening. So Neha, how would you handle a situation where a student is consistently late to your class? So yes, there is a student, few of my students who always are late in the class, but how I behave, like how I deal with the situation is like my kids are, ma'am, basically very, small. So this is the part of parent here in my class. I can say this is a part of a parent कि उनको student की habit बनानी है. I myself tell them to come in a proper time, but what happens अगर student को स्कूल घर से ही प्रॉपर टाइम पे नहीं भेजा जा रहा, तो वो बच्चे इतने छोटे हैं कि वो नहीं कर पाएंगे. बट वो एक एक बच्चे को बनाने में सिर्फ टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती. बच्चा अपने घर से बहुत कुछ सीखता है. वो अपने लाइफ के 3 इयर्स ऑलरेडी घर से दे चुका होता है. तो आई हैव टू टॉक फॉर दैट. मैंने बहुत बार अपने पेरेंट्स से वन ऑन वन टॉक की है. आई कॉल्ड देम कि प्लीज मेक इट अ हैबिट. मैंने उन्हें डायरी नोट भी दिया है, सो दैट एक स्टूडेंट को फील हो कि यस, आई एम कमिंग लेट. वो बच्चा भी घर जाके बोलेगा कि मैम आज मेरे मामा, मतलब मम्मा, आज मेरी मैम ने मुझे बोला है दैट आई वाज लेट इन क्लास, तो मुझे जल्दी जाना है. इससे पेरेंट को भी पिन पॉइंट होगा कि यस, स्टूडेंट फील दैट, बिकॉज इफ ईच एंड एवरी स्टूडेंट इज कमिंग ऑन टाइम, वही बच्चा अगर अकेला आ रहा है तो उसका तो समथिंग इज मिसिंग. मतलब देर इज समथिंग ही मे बी मिस इन द क्लासरूम. फॉर एग्जाम्पल मॉर्निंग असेंबली, फॉर श्योर ही विल मिस मॉर्निंग असेंबली. सो उसके वजह से उस बच्चे को कहीं ना कहीं वो चीज फील होगा. फर्स्ट वो बच्चा ही अपने पेरेंट्स को पॉइंट आउट कर देगा. सेकंड, वी आर हेयर टू टेल द पेरेंट्स. बार बार हम लोग पेरेंट्स को ही, इस एज में तो पेरेंट्स को ही कह सकते हैं, बट मैं ये कह सकती हूँ कि अगर एज बड़ी हो जाती है तो इट्स अ चाइल्ड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो टू बी ऑन टाइम ड्यूरिंग द क्लासेस. So Neha, what is your philosophy on discipline? Ma'am, What can you basically, say about this? uh, in my philosophy, I can say I took clear all the rules and regulation before starting my class, that this is the rules and regulation you have to follow in my class. Whether for my students, basic disciplines is like moving in a queue, not making any noise during walking in the corridors. This is the basic discipline we have to tell them. Not to throw anything here and there, throw it in the dustbin only, to sit properly in the class, to listen to the instruction properly. So from day one, I told them that no talking while eating, no talking in the class while teacher is teaching, no walking in the classroom, or sorry, no running in the corridors, or go make proper follow proper discipline. Also make a queue, walk in a queue only. So with these students, I'll make sure ki they are following these things. But if I'll find there is student who is not following those things, I will definitely talk to him personally. Because students need, maybe he is not
that active in the classroom, he is not able to understand what teacher is saying, discipline होता क्या है. So for those students, तो हम उनको तो good and bad के वैसे ही समझाते हैं that if you have to be a want to be a good child, you have to follow the discipline. अगर आप ये discipline को follow करोगे ना, तभी आप good baby कहलाओगे, otherwise you will not be a good baby. So this is the way I told my child. और if I feel that problem is a lot, बहुत घर से ही प्रॉब्लम हो रही है जिस वजह से बच्चा नहीं फॉलो कर पा रहा, तो आई विल डेफिनेटली कॉन्टेक्ट टू द पेरेंट. मैं पेरेंट को, as we are living in a ma'am technical era, so this is, we can use it as a boon. हमारे लिए बहुत बड़ा boon है कि हम डायरेक्ट पेरेंट्स से कांटेक्ट करते हैं थ्रू ब्रॉडकास्ट ग्रुप्स, or we can ping them personally. Or I told my parents, whenever you feel like, you can call to us, you can discuss things with us, so that बच्चे और बच्चा जो सीखने आ रहा है वो हमारा पॉइंट क्लियर हो एंड उसका डिसिप्लिन हो, चाहे academically हो, he or she will perform well. So I would like to see Mr. Manoj introduce himself. Mr. Manoj, it's over to you. Mr. Manoj, am I audible? So, Jyoti, can you describe your classroom management style? मैम एक प्रश्न है ज्योति से एक प्रश्न है। ज्योति, क्लास में बहुत ज्यादा बच्चे अगर शोर कर रहे हैं, बहुत डिस्टरबेंस कर रहे हैं, तो आप क्लास को कैसे उसको हैंडल करोगे, डिसिप्लिन कैसे लाओगे, क्या कौन सी टेक्निक आप अपनाओगे? सर फर्स्टली मुझे प्रायोरिटी देनी चाहिए कि मतलब मुझे मेरे बच्चों में क्या चाहते हैं मेरे बच्चे एक्चुअली। समटाइम्स ऐसा होता है 7 पीरियड्स लग चुके हैं सर, कंटिन्यूअसली पढ़ रहे हैं और लास्ट पीरियड मान लो उनका मन नहीं है पढ़ने का, तो मुझे भी उतना ज्यादा फोर्स नहीं करना चाहिए क्योंकि बच्चे भी एक ह्यूमन ही है। 7 पीरियड्स आर देयर, हाँ कंटिन्यूअस स्टडी कर रहे हैं, तो मैं उनकी भी बात सुनती हूँ। इट्स टू वे कम्युनिकेशन। और फिर मैं मैनेज करती हूँ, देन मैं उनसे डील करती हूँ दैट कि आपको अगर आज मैं थोड़ी सी लिबर्टी दे देती हूँ, then you need to complete your this work, that work, and all these promises they will make. And sometimes we can give leeway, okay? And बच्चे भी आपको सुनते हैं, फिर अगर आप एक बार उनकी बात मान लेते हैं तो उसके बाद वो भी आपकी बात मानते हैं। आई ऑब्जर्व दैट। ये तो लास्ट क्लास का है, लेकिन मान लीजिए फर्स्ट पीरियड है, सेकंड पीरियड है, और ऐसे में कई बार मैथ और साइंस की क्लास चल रही है जो बहुत इंटरेस्टिंग हो, उसमें भी कुछ बच्चे होते हैं कि जो 50 बच्चे हैं, 40 बच्चों की स्ट्रेंथ है, तो एक दो बच्चे होते हैं जो डिस्टर्बिंग होते हैं, आपस में बातचीत करना या बीच में ध्यान नहीं देना, और क्लास में उससे इनडिसिप्लिन क्रिएट होता है। तो ऐसे में इस सिचुएशन में आप कैसे हैंडल करते हो? बच्चों को बाहर निकाल देते हो, बच्चे को खड़े कर देते हो, या बच्चों को कैसे हैंडल करते हो कि क्लास डिस्टर्ब न हो एक बच्चे की वजह से? सर एक्चुअली क्या है कि बच्चों को हार्श पनिशमेंट तो बिल्कुल देनी नहीं चाहिए, उससे बच्चा थोड़ा और ज्यादा डिमोटिवेट हो जाता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं जनरली, अगर बच्चा बहुत ज्यादा बात कर रहा है, पहले तो हम क्लास को ही इतना इंटरेक्टिव बनाए कि बच्चा बात ना करे, उसका फोकस हो हमारी तरफ। कोई एक्टिविटी करवा रहे हैं तो हम उसी को ग्रुप ग्रुप को डील करने के लिए बोल दें, ठीक है? तो ये 2-3 तरीके होते हैं कि वो बच्चा ना बातें करे। दूसरा, अगर फिर भी वो बात कर रहा है तो उससे पर्सनली आप बात करिए पहले तो, क्योंकि बच्चे को भी कोई डाउट हो सकता है, बिल्कुल भी इंटरेस्ट ना आ रहा हो, 4-5 दिन से नहीं आया, उसको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है चैप्टर में क्या चल रहा है, तो वह सिंपली ऐसे बैठा नहीं रह सकता, वो बात करेगा, डिस्टर्ब करेगा ही। तो उससे पर्सनली भी बात करी जाए कि वो इसको क्या प्रॉब्लम है। वो और बहुत अच्छे से इंटरेक्ट करते हैं बच्चे, बात करते हैं, बताते हैं क्या प्रॉब्लम है, और उसके बाद वो इस बात का ध्यान भी रखते हैं कि आगे से मुझे कैसे डील करना है। वो डायरेक्टली आपको आगे से अपनी प्रॉब्लम्स बताएंगे भी, तो जिससे आपका बच्चों के साथ कनेक्शन भी काफी अच्छा बनेगा। नेहा पाठक, नेहा एक प्रश्न है आपसे। नेहा ऑडिबल? Yes sir, yes sir. जो टीचिंग, माइक्रो टीचिंग में जो डिफरेंट स्किल है जो आपने बीएड में यहाँ पर सीखा, चाहे वो सेट इंडक्शन हो, इलस्ट्रेशन विथ एग्जांपल हो, ठीक है, रिइंफोर्समेंट है, एक्सप्लेनिंग स्किल है, जो डिफरेंट स्किल आपने यहाँ पर सीखा,
जो आप एक्चुअल क्लास पढ़ाते हैं बच्चों को, तो वहाँ आपके लिए इम्पोर्टेंट है उसका, मतलब उससे अच्छा रहता है। Yes, sir, for sure, because विदाउट चेकिंग द प्रीवियस नॉलेज हम बच्चों को न्यू थिंग तो पढ़ा ही नहीं सकते, स्पेशली जो जिस एज ग्रुप को मैं हैंडल कर रही हूँ उसके साथ तो ये चीज बहुत है। बिकॉज अगर मैं एक न्यू लेटर एक्सप्लेन कर रही हूँ तो वो पुराना लेटर भूल जाएंगे फॉर श्योर। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मॉर्निंग में हमारे सेशन ही 1 आवर के सेशन ही ओरल सेशंस होते हैं, जिसमें हम उन्हें डिलीवर ही चीजें वही वही चीजें उनको रिपीट कराते रहते हैं जो हम ऑलरेडी डिलीवर कर चुके हैं। एंड ऑल्सो इंडक्टिव एंड डिडक्टिव अप्रोच भी मेरे बच्चों के साथ बहुत काम आता है, बिकॉज विदाउट एग्जाम्पल दे वुड नेवर अंडरस्टैंड द थिंग्स। उनको मैं डायरेक्टली कोई लेसन जाके बस बोल दूं एग्जैक्टली तो उनको तो कुछ समझ नहीं आएगा। आई हैव टू गिव देम प्रॉपर एग्जाम्पल्स विद अ रियल लाइफ सिचुएशन। अपने को मेरे को खड़ा रखना पड़ता है कि आपकी मैम ने ये किया। स्टूडेंट्स के लिए टीचर्स एक रोल मॉडल बन जाता है। इफ आई एम इवन टीचिंग देम अबाउट जंक फूड हेल्दी फूड, तो हमने प्रॉपर एक एक्टिविटी प्लान की थी जहाँ पे टीचर्स ने ही एक्ट किया था। तो उनको देख के बच्चे को समझ आता है। फॉर एग्जाम्पल टुडे ओनली, आज मेरे एक बच्चे ने अपनी मदर को बोला कि मेरी मम्मा तो जंक फूड, मेरी मैम तो जंक फूड नहीं खाती है, तो मैं तो मैम को चॉकलेट नहीं दूंगा। तो ये एक बच्चे के साथ हो जाता है कि हम जब तक एक्टिव पार्टिसिपेशन बच्चों का नहीं कराएंगे और हम उनको शो करके नहीं दिखाएंगे तो वो चीज पॉसिबल ही नहीं है। तो सारी हमारी जितनी हमने स्किल्स बीएड में पढ़ी है वो कहीं ना कहीं हमारी हर जगह यूज हो रही है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ज्योति, यस। आप देखते हैं कि जिससे अभी नेहा ने बताया, आप लोगों ने जो डिफरेंट स्किल की बात की गई, और जब एक्चुअल क्लास में आप लोग जाते हैं उस समय तो ड्यूरिंग बीएड आप एक स्टूडेंट थे, पढ़ रहे थे, लेकिन अब आप ये टीचर हैं, किसी आपको जिम्मेदारी मिली है क्योंकि प्लेटफॉर्म बदल गया। जो आप पीछे बैठते थे या क्लास में बैठते थे, वहां कोई और बैठने वाला है, आप सीधे आगे जो टीचर का स्थान होता था। तो दोनों में लगता है कि उस समय जो टीचर बताते थे और उतना सा सीरियसली नहीं लेते थे, मतलब हम सबकी बात नहीं कर रहे हैं, कुछ बच्चे शायद वो आज अच्छे से सीखे होते शायद उसका, और हम यूज कर पाते क्लास में। हाँ बिल्कुल सर, ऐसा बिल्कुल होता है। जैसे मान लो मैंने 7 स्किल्स अच्छे से वहां पे प्रैक्टिस करी, तो मुझे पता है कि मुझे अपना इंट्रोडक्शन कैसे स्टार्ट करना है, तो मैं उसका इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन स्टार्ट करवाऊंगी। तो जिससे कि मुझे प्रीवियस नॉलेज का भी गेन हो जाएगा बच्चों का कि उनको क्या पता है प्रीवियसली। तो ये सारी स्किल्स सर हर लेसन में मुझे काम आती हैं। और इस और इंटरेक्शन करना, ब्लैक बोर्ड स्किल, सारी स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट रही हैं। तो उसमें अगर आप बैठ के बस नहीं ठीक से पढ़ रहे होगे, तो सर ये स्किल्स कैसे यूज करेंगे आज के टाइम में। और आज के टाइम में तो वैसे भी बच्चे बिल्कुल सब कुछ पढ़ सकते हैं, वो यूट्यूब से, यहाँ से बहुत सारे सोर्सेज हैं। तो आप किस लिए हो, तो आपका अपना भी इम्पोर्टेंस देना जरूरी है उनकी ग्रूमिंग के लिए, उनके थॉट्स डेवलप करने के लिए। और भी डिफरेंट चीजें हैं जो एक टीचर ही दे सकता है। और सोर्सेस तो बहुत हो सकते हैं पढ़ने के, बट जो एक पर्सनालिटी डेवलप करने में जो हेल्प करता है वो टीचर ही करते हैं। टीचर का स्थान अगर देखा जाए तो कोई नहीं ले सकता। कितने भी नॉलेज हम इकट्ठा कर सकते हैं, ज्ञान ज्ञान गूगल से प्राप्त कर सकते हैं, यूट्यूब से ले सकते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें जो एज ए सिचुएशन, जो परिस्थितियां होती है उसके अकॉर्डिंग हमको कैसे हैंडल करना है, वो आपको एक टीचर ही एट ए टाइम अपने माइंड का प्रयोग करके उसको हैंडल कर सकता है। बिल्कुल सर। जो आपके जूनियर हैं, जो हमारे स्टूडेंट हैं, कन्वर्सेशन में पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए आप लोग क्या मैसेज देना चाहोगे कि जो उनका कोर्स है फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर वाले बच्चे जो हैं हमारे, वो कैसे इसको और अच्छे से करें कि आगे जब टीचिंग में जाए तो उनको प्रॉब्लम फेस न करना पड़े। सबसे पहले तो वहाँ जो आपको माइक्रो टीचिंग कराते हैं, ये लोग बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं सर, और मैम भी। तो ये बहुत अच्छे से करना आप लोग, एक एक स्किल्स को, एक एक स्किल पे अपना टाइम देना। और जैसे आप ब्लैक बोर्ड स्किल कर रहे हैं तो उसमें फोकस करना कि आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। बार बार प्रैक्टिस करो, घर पे बोर्ड लगा लो, उस पे अच्छे प्रैक्टिस करो। कभी कभी बच्चों जब हम लोग स्टूडेंट थे तो हमारी राइटिंग बहुत खराब हो जाती थी बोर्ड पे, बट वो राइटिंग ना एक आपका प्रैक्टिस करने से ही अच्छी होगी। तो अभी से ही आप उसे प्रैक्टिस करें। और लेसन प्लान बनाएं। आप मान लो ट्यूशन पढ़ा रहे हो, आपको अभी स्कूल नहीं जा रहे हो, तो ट्यूशन में भी उस चीज को फॉलो करो आप। ठीक है। तो थोड़ी थोड़ी आपकी लर्निंग हो जाएगी। आप पहले लेसन प्लान बना के ही पढ़ाओ। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, लेसन प्लान इज इम्पोर्टेंट।
एंड आई ऑल्सो ऐड कि मतलब बहुत जरूरी है टीचिंग, मतलब डोंट टेक योर इंटर्नशिप एज जस्ट अ पास टाइम कि आपको सिर्फ 4 मंथ इंटर्नशिप करनी है जस्ट टू गेट योर सर्टिफिकेट। वो सर्टिफिकेट तो आप कहीं से भी ले सकते हैं, बट जो नॉलेज है यू विल डेफिनेटली नॉट गोइंग टू गेट दैट नॉलेज फ्रॉम एनीवेयर। वो जो टाइम आप एक स्कूल में स्पेंड करेंगे, जो प्रैक्टिकल आवर्स आप देखेंगे, आप उस स्कूल के ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टीचर से बहुत कुछ सीख सकते हैं, उस स्कूल के करिकुलम से बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो जो आप अपना टाइम दे रहे हैं, व्हाई नॉट गिव दैट टाइम पॉजिटिवली, बाय जस्ट बाय जस्ट वेस्टिंग द टाइम। आप सिर्फ जा रहे हो अटेंडेंस के लिए, उससे शायद आपका तो टाइम यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा। सो आई विल डेफिनेटली ऐड कि आप प्लीज उस टाइम को अच्छे से यूज कीजिए सो दैट आपका जो भी स्किल है अभी से डेवलप होना शुरू करे और आपको आगे कोई भी प्रॉब्लम फेस करना ना पड़े। सरिता मैम, लग रहा करीब करीब कोई ऐसा टॉपिक छूटा नहीं जो ये लोग कवर नहीं किए हो, बहुत अच्छे तरीके से डिलीवर किया। माइंड अप। Okay, sir. So I would like to invite Dr. C.S. Yadav, sir, Dean, IIMT College of Science and Technology, for vote of thanks. थैंक यू मैम इनवाइटिंग मी फॉर गिव ए वोट ऑफ थैंक्स। सबसे पहले तो मैं अपने जो एलुमनाई हैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा कि एक फोन पर कल ही लोगों से बात हुई, और जो जहां जॉब कर रहा है वहां के लिए सोचता है। और ज्योति का भी ये दूसरी बार है, 2017 की पास आउट है, और उस समय शायद ज्ञान इंटरनेशनल में शायद पढ़ा रही थी क्या, किसी केडी में थी किसमें, बहुत। हाँ, उस समय भी उन्होंने ज्वाइन किया था। और अभी कल ही ज्योति से बात हुई, ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं, हम 3 बजे स्कूल से आएंगे। और इन्होंने विदाउट डिले किए, बिना किसी वजह के, सर कोई दिक्कत नहीं, आप जैसे चाहें, हम लोग एग्री हैं। तो मैं अपने एलुमनाई का धन्यवाद देना चाहूंगा कि जो कॉलेज के लिए और फैकल्टी का रेस्पेक्ट करते हैं, और एक फोन पर कभी मना नहीं करना तो बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि जॉब में रहते हुए वहां से वहां का वर्क तो करना, लेकिन वहां से अलग टाइम निकाल के यहाँ करना। शायद अभी ये लोग घर पे पहुंचे नहीं, अभी कोई कह रहा हम 3 बजे पहुंचेंगे, पौने 3 बजे पहुंचेंगे, उसके बाद सारे बच्चे सर हम पहुंच गए, अब आप स्टार्ट कर सकते हैं, हमारा नंबर आ जाएगा। और नेहा को भी हमने, क्योंकि ये ऐसे बच्चे हैं कि जिनको कभी भी कॉलेज में जो भी इवेंट और एक्टिविटी होती थी बहुत अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट करते थे। कभी भी कुछ भी कराना हो, या था कि हाँ इन बच्चों से बोल दिया जाएगा, ये बच्चे करके लाएंगे या करना होगा। कुछ इतने विश्वसनीय बच्चे हैं जिन पर एक कॉन्फिडेंस आज भी वो है कि कभी भी ज्योति को कॉल कर लेंगे, कभी भी कोई दिक्कत नहीं। कल कॉल किया, नेहा कहाँ पर, कैम्ब्रिज में नहीं सर, हम जेपी में, ठीक है कल एलुमनाई कनेक्ट है। तो इतने आसानी से, और रेस्पेक्ट कह सकते हैं इसको, ऐसा नहीं कि इजी टाइम इतना किसी के पास नहीं होता है। और हम लोग भी अपने बच्चों के लिए उतना ही ध्यान रखते हैं कि हमारे जो एलुमनाई हैं उनको कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो। जब बीएड कर रहे हैं तो कर रहे हैं, उसके बाद जाने के बावजूद भी बच्चों के फोन आते हैं। और आज वही है एक जो बाइंडिंग है कि जो बातचीत हो रही है, और बच्चे तुरंत, आपको 12 घंटे के अंतराल में आपके लिए तैयार हो जाना बहुत बड़ी चीज होती है, कि आप 4 दिन 5 दिन पहले से प्लानिंग करते हैं, देखते हैं, बताते हैं, सोचते हैं क्लास है नहीं है, कितने बजे पहुंचेंगे। लेकिन ये बहुत बड़ी चीज है। और जो भी हमारे तीनों अलुमनाई हैं, उन लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आगे ऐसे जब भी प्रोग्राम हो, अभी उम्मीद करते हैं कि इस तरीके से उनको कॉलेज मौका देता रहेगा, और वो भी बच्चों को, जो हमारे करंट सेशन के बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, उनको अपना ज्ञानवर्धन करते रहेंगे, उनको अपना गाइड करते रहेंगे। मैं सरिता मैम का भी धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि मैडम ने ही सब कुछ बच्चों से बात करना, डिटेल करना, और हम तो बस एक बीच का, यह बस इसमें जुड़े हैं, काम सब मैडम ही कर रही हैं। और बच्चों से रात में एक जूम मीटिंग पर ट्रायल होना, बात करना कि कल है आप लोगों को इतने बजे क्या कैसे है। तो मैडम हमेशा जब भी रहता है काफी मेहनत डेडिकेशन के साथ काम करती रहती हैं। मेघा मैडम को भी धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि मेघा मैम भी इसमें जुड़ी है, वो भी अपना वेब टीम, डिजिटल टीम को भी धन्यवाद देना चाहूंगा, जो डिजाइन करते हैं या जो वेब टीम वाले हैं। क्योंकि बिना सबके सहयोग से कोई भी कार्य सही तरीके से संपन्न नहीं हो सकता। आप देखते हैं कि मूवी में पर्दे के सामने तो काम करने वाले 4 6 10 होते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे बहुत लोग होते हैं, उनका भी उतना ही योगदान होता है, कि अगर एक नहीं हो, मिसिंग हो, तो हो सकता है कि आप वहां तक, स्टेज तक पहुंच ही नहीं पाए। तो सबका, जो भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली, पूनम मैडम का भी धन्यवाद देना चाहूंगा, डायरेक्टर आईपी कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, क्योंकि मैडम ने हम लोगों पर बिलीव कर किया है, विश्वास किया, जो हम लोगों को ये जिम्मेदारी दी है, ये अलुमनाई कोऑर्डिनेटर का, अलुमनाई कनेक्ट करने के लिए। क्योंकि
बहुत बड़ी चीज है कि उस विश्वास को बनाए रखना हम लोगों की कोशिश होती है, और मैडम का जो मोटिवेशन है, मैडम का जो गाइडेंस है, हम लोगों के लिए हमेशा प्रेरणा दायी रहता है। क्योंकि आप देखते हैं कि काम तो आप करते हैं, लेकिन जब आपके सीनियर, जब आपके डायरेक्टर, आपके प्रिंसिपल, जब आपको लगता है कि कहीं कुछ कमी है, आपको एक गाइड करते रहते हैं कि नहीं और कहाँ आप इम्प्रूवमेंट करके और अच्छे तरीके से काम बहुत अच्छा हुआ, आपको अप्रिसिएट करते, तो वो बहुत बड़ी चीज है। ठीक है। एक बार फिर से हम अपने इन तीनों अलुमनी को, ज्योति, नेहा, मनोज को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने बहुत शार्ट नोटिस पर और 12 घंटे के अंदर तैयार हुए और बहुत अच्छे तरीके से, कोई ऐसा हमको लगता है कि एरिया नहीं बचा 40 से 45 मिनट में जिसको कहा जाए गागर में सागर भर देना। कोई इसमें दो राय नहीं है। इन्होंने आधे घंटे 40 मिनट के अपने एक लेक्चर में जितने हिसाब से कि जो टीचिंग स्टाइल है, क्लास मैनेजमेंट है, कैसे हम उसको कर सकते हैं, अगर जो बच्चे हमारे हैं करंट ईयर के, उनको या जो एलुमनाई है उनके लिए काफी हेल्पफुल होगा। क्योंकि जो ये एक्सपीरियंस है, जब आप एक्चुअल क्लास में जाते हैं, फेस करते हैं, तो वो जो आपका अनुभव होता है वो अलग होता है। एक बार फिर अगेन थैंक यू सो मच सभी थैंक यू को। सर। थैंक यू सर। Thank you so much, sir. थैंक यू मैम। Thank you so much, Olalan guys. थैंक यू मैम। Thank you, ma'am.